ساحل صاحب یہ میں نے کل دیکھا اور میرا دل کر رہا تھا میں سیٹرڈے کو چلاؤں، لیکن آپ کے چینل پہ اس وقت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، تو اس وقت چلانا بہتر ہے. ہر وہ مسلٹا جو ہمیں آ کے بک بک کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھو کہ تمہارے مسلٹے بولنا شروع ہو گئے ہیں. They have started saying this same very thing. کوئی دوسری زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی، مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بچ گئی، زندگی بچ گئی، مگر ہر سال آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی، اس زہر کی زہر کی تکلیف کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. واہ بھائی واہ. سر یہ وہ کتے مولا ہیں جو بھونکتے تھے ہمیں کہ یہ ایکس مسلم جھوٹ بول رہے ہیں، ایکس مسلم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سالے ایکس مسلم ہی نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہی ملا ہیں جو آج بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہاں محمد کا موت زہر کے اثر سے ہوا اور اللہ لیٹ ہو گیا، اللہ لیٹ ہو گیا. یہ پہلے کیوں نہیں، وہ 2-3 نوالے جو کھا لیے تھے رسول اللہ نے، اللہ لیٹ ہو گیا اللہ نے بتانے کے پہلے لیے. کیوں نہیں بتایا؟ لیٹ ہو گیا نا یار، فرشتے کو 7ویں آسمان سے زمین پہ آنے میں ٹائم لگتا، ساحل لیٹ ہو گیا. اللہ پیٹرول ویٹرول تو نہیں ختم ہو گیا تھا راستے میں جبرائیل صاحب کا؟ کھانا کھانا شروع ہو گیا تھا جبرائیل رستے میں نا، اسے بھوک لگ گئی تھی، وہ لیٹ ہو گیا. محمد 2 نوالے کھا چکا ہوا تھا، مر گیا اسی وجہ سے. ساحل ہمارا آرگیومنٹ، ہم جو کہتے ہیں، جو ہم کہتے رہے سر پیٹتے رہے ہیں دیوار میں کہ بھائی اللہ نے محمد کو پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کھانے میں زہر ہے، اس کو منہ میں کیوں ڈالنے دیا. وہ ملا کہہ رہا ہے کہ جتنی دیر میں محمد کو آگے بتایا اس سے پہلے وہ 2 لقمے کھا چکا تھا. یار حد ہو گئی ساحل. اب اس سے واضح دلیل مومنوں کو کیا چاہیے بھائی؟ اور ایڈم بھائی یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اللہ ہی کیوں بتائیے، تو مطلب محمد صاحب ان کے اندر تو بہت ساری معجزہ انہوں نے کیا ہے، تو ان کو کیسے نہیں پتا چلا کہ اس میں زہر ہے؟ کوئی جان بوجھ کے ارے کھاتا ہے کیا اینجل جی بابا جی کا ٹھلو چھوڑیں اس بات کو، مجھے وہ بات نہیں کرنی جو مولوی نے نہیں بولی. مولوی نے اپنے منہ سے بولا ہے، جو میں اس پہ بات کروں گا. مولوی اپنے منہ سے بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ سادہ انسان ہے، ملینز کے اندر سبسکرائبر ہے اس کے، ملینز میں. وہ بول رہا ہے کہ جتنی دیر میں اللہ نے بتایا اتنی دیر میں 2 لقمے کھا چکا تھا. جو اللہ محمد کو زمین سے 7 آسمانوں پہ لے جا کے ٹائم سٹاپ کر سکتا ہے کہ نلکے کا پانی ابھی زمین پہ ہے اور وہ نالی کے اندر نہیں گیا، بستر ابھی گرم ہے، اور محمد گدے سے بڑے اور گھوڑے سے چھوٹے ایک خچر نما جانور جس کے پنکھ ہیں اور اس کا فیس مور کی طرح ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے پہلے جروسلم جا کے اس مسجد میں جو کہ بنی بھی نہیں ہے، اس کے کھونٹے کے ساتھ اپنا گھوڑا خچر باندھ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے دوبارہ اس پہ بیٹھ کے آسمان کے اوپر اڑ کے 7ویں آسمان پہ پہنچ سکتا ہے، اور پہلے آسمان پہ جا کے دروازہ کھڑکا کے اینجل سے بات کرتا ہے. کون ہے؟ جبرائیل ہوں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد ہے. کیا اس کو اجازت ہے یہ اندر آ جائے؟ ہاں اجازت ہے. اوکے دروازہ کھول دو. وہاں پہ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6ٹھا، پھر 7واں آسمان، اور وہاں سے شجرۃ المنتہا پہ پہنچ سکتا ہے جہاں پہ فرشتہ جبرائیل کہتا ہے یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پنکھ جل جائیں گے، یہاں سے آگے محمد صرف تو جائے گا. وہ محمد اس کو بھی کراس کرتا ہے، ایک شجر درخت دیکھتا ہے جس کے اوپر بڑے بڑے پتے ہیں، سراہی کی مانند پتے ہیں، پیلے ہیں یا پرپل ہیں یا سبز ہیں، وہ رنگ بھی ایسا ہے جو کہ دنیا کا رنگ جیسا رنگ نہیں ہے. اس کے کراس کر کے اندر جاتا ہے، اللہ سے 2 زانوں ہو کے بیٹھ کے بات کرتا ہے، التحیات للہ الصلوات والطیبات والسلام پڑھتا ہے، اللہ اس کو جواب دیتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے، تیسرے آسمان پہ موسیٰ سے بات کرتا ہے، 50 نمازیں کیوں آئیں، پھر اوپر جاتا ہے، پھر نمازیں 40 کراتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، ڈڈو کی طرح چھلانگیں مارتا ہے، آخر نمازیں 5 کرا کے پھر کھوتے گھوڑے پہ سوار ہو کے زمین کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر جبرائیل کو بائے بائے کرتا ہے تو اندر داخل ہوتا ہے. تو جو وضو کا، نماز کے لیے جو وضو کرنے کا جو پانی ہے وہ ابھی تک گیلا ہے، بیسن سے اندر نہیں گیا ہے، اور بستر گرم ہے. مجھے بتاؤ جو اللہ یہ سارا کچھ کرنے لگا ہے
وہ محمد کو بتا نہیں سکا کہ جو کھانا تو کھانے لگا ہے اس میں زہر ہے. بوٹی نعرے صلوات اللہم صلی علی اللہم محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعجل الفرج. اچھا لیکن یہ آپ نے ایڈم صاحب یہ نہیں بتایا نا وہ بوٹی کھا لیتے نا, بوٹی میں زہر ڈالا تھا نا اس نے. بوٹی وہ بھی کون سی؟ دستی کی بوٹی, فرنٹ ولی ران کی دستی کی بوٹی. محمد کو دستی کی بوٹی بہت پسند تھی واللہ حبیبی, واللہ دستی کی فیوریٹ تھا بوٹی. نا. لیکن لالا جی ایک چیز آپ نے چھوڑ دیا نا, اس سے بھی قریب آ جائیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ام ہانی کے گھر کی جو کنڈی تھی اس کو چھوڑا جب وہ ہل رہی تھی. ہاں 7 آسمان کا سفر کر کے آ گئے, نمازیں بھی کم کرا لی, جنت دوزخ کی سیر بھی کر لی, اور گھوڑے پر سوار بھی ہو گئے, نمازیں بھی پڑھائی انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں. واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بہ رہا تھا. ہاں ایک چیز اور ایڈم بھائی نے چھوڑا کہ وہ جنت دوزخ کو بھی تو دیکھ کے آئے تھے نا شاید ساجد بھائی کہ اس میں ٹائم سٹاپ ہو گیا تھا نا, یہی تو کہہ رہا ہوں, ٹائم سٹاپ کر دیا تھا اللہ نے. تو جس وقت محمد کے سامنے وہ گوشت لایا گیا جو کہ اس کو بڑا پسند تھا, اس وقت جبرائیل لیٹ ہو رہا ہے. آقا دو جہاں سرور کائنات زہر اللہ گوشت کھانے لگا ہے, تیرا محبوب, اللہ لیٹ ہو گیا. ایک دفعہ لالا جی اللہ کے نبی نے پوچھا تھا جبریل سے کہ جبریل سب سے تیز رفتار میں تم زمین پر کب آئے ہو؟ تو جبریل نے کئی ایک واقعہ بتایا تھا, شاید 3 دفعہ وہ تیز رفتار سے آئے. ایک واقعہ اس میں یہ تھا کہ جب موسیٰ کو ابراہیم کو شاید آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا, یا نارکونی بردم السلام علی ابراہیم, آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو منجنیق ہاں پہ تب ڈال کے پہنچے آگ تھے. میں پھینکا جا رہا, رستے میں پہنچ گیا, آرام سے اتار دے. محمد کے 2 لقمے کھانے سے پہلے نہیں آ سکتا تھا. تب وہ پہنچے تھے. اور دوسری دفعہ جبریل نے کہا کہ جب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, سورہ یوسف تب میں بھی آ گیا جا بات فٹک کر کے, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تاکہ کنویں کی زمین پہ گرتے گرتے اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں, اس کو آرام سے کنویں میں اتار دے. ہاں تب جبریل نے کہا کہ کنویں میں جب ان کے بھائیوں نے دھکیلا تو ان کے نیچے گرنے سے پہلے میں کنویں میں پہنچ گیا تھا. اور ابراہیم کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو جب پھینکا گیا منجنیق سے, آگ میں جانے سے پہلے میں پہنچ گیا, لیکن یہ لقمہ کھانے سے پہلے نہیں بتایا گیا. واللہ حبیبی, واللہ اچھا ایک مومن ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ناصر ایوب صاحب. ناصر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ناصر ایوب صاحب, آج کیا کوئی مومنوں کا انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا کیا ڈھنگ سے؟ واللہ حبیبی. ناصر ایوب, ارے کچھ بول دے بھائی ناصر ایوب. یار ایک تو یہ اتنے سارے نان مومنوں کو امت جب سے بلاک کرتے جا رہا ہے, ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی مومن اگر جڑنا چاہتا ہے اس کو سپیس ہی نہیں ملے گا. امت ہے نا یار, امت ہے نا بلاک کرنے کے لیے. لیکن لوگوں کیا خود کو سمجھ میں نہیں آتا. ساحل بھائی ڈائریکٹلی نام دیکھ کے بلاک کر رہا ہوں, جو بھی نان مومن جڑے گا ڈائریکٹ بلاک ہوگا. حد ہے یار. ناصر صاحب کچھ بولو گے؟ ایم ڈی عقیل, ایم ڈی عقیل انمیوٹ کر لیجئے. ایم ڈی عقیل, یار یہ کیا میرے انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے یا کیا سین ہے؟ نہیں سر, مجھے بھی آواز نہیں, مجھے آتی ہوتی تو میں بولنا دیتا آپ کو. چپ جہاد چل رہا ہے. انمیوٹ کر لے بھائی, ایم ڈی عقیل انمیوٹ کر لے. نکل گیا ہم کو لگ, اچھا ہے ابھی. محمد عقیل بھائی, چلو زین العابدین کو دیکھتے ہیں. اچھا زین العابدین بھی کلٹی مار چکے ہیں. احمد صاحب جی کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. مومن ہے سر آپ؟ جی پکے والے ہیں؟ نہیں پکے والے نہیں, لیکن ہوں مومن. کتنے کچے پکے آپ؟ 50-50, 40-60, 30-70؟ 50-50 کہہ لیں. اچھا 50-50. نمازیں پڑھتے ہیں؟ کبھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا
एक मिनट रुकिएगा। अरे यार ये नाम बदल बदल के आता है ये आबिद। रुक जा भाई तू। तया सुना दें, नमाज आप पढ़ते हैं, तया सुना दें सर। अतियात जी सर। अतियात लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम है? अलैना। अस्सलाम अलैना, वो आगे जरा थोड़ा गड़बड़ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अब ठीक है? अल्लाहुम्मा बारिक। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। चलें, टूटी फूटी नमाज पढ़ ही लेते हैं ये साहिल भाई। अच्छा ये इनसे भी हाँ, चेक कर लेते हैं एडम, ये नासिर अय्यूब फिर से जुड़े हैं क्योंकि जी, हम ले चाहते हैं कि कोई धारदार दांत वाला हो, नॉलेजेबल हो तो ज्यादा बेहतर होगा। नासिर अय्यूब साहब, माइक चल रहा है आपका भी? नासिर अय्यूब यार, किस तरीके का तुम लोग मोबाइल यूज करते हो, किस तरीके का इंटरनेट यूज करते हो? साहिल हरनिया शेख फिर आया। उसका नहीं चलेगा, मेरे को 110% यकीन है, देख लेते हैं। नहीं, अब हाँ इनका हरनिया गेम भाई। दूसरा है। क्या ठीक आप हो गया? स्ट्रीम में लीजिए, ये निकल जाते हैं। अभी हाँ ये दूसरा हो गया। पहले था हाँ कि भाई बोलते नहीं थे। हरनिया, हरनिया भाई गया, निकल गया। सही कहा। निकल गया ना। अब इनका चेंज हो गया भाई, इनका रूल बदलता रहता है। मैंने देखा 3 बार अपनी स्ट्रीम में लेकर। पहले थी कि आवाज नहीं आती थी, ये बोलते नहीं थे। अब है ना, 2-3 बार देखेंगे किसने किसने मेरा नाम पुकारा, फिर निकल जाते हैं। हाँ उस्मान खान साहब, आप तो आपका असल नाम जो है वो तो नॉन मोमिनो वाला है, उस्मान खान। हेलो। सर मोमिन है आप? नहीं, यार सर शर्म भी आ रही है आपको ज्वाइन करने के लिए? वो अमित ने ब्लॉक कर दिया, निकल गया। तो बहुत जवाब फास्ट देने है में- अमित अमित भाई। बहुत तेज है यार, अमित बहुत बहुत तेज है इस फास्ट है। मामले में। बहुत फास्ट है। ऐसा है यार। चलो अहमद से ही बात कर लेते हैं एडम, जब तक कोई मोमिन जब तक नहीं जुड़ता। जी 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 करें। जनता मोमिन। जी अहमद यार साहब। एडम ये जो मोहम्मद को जहर देने का वाकया है, ये कंफर्म तो नहीं है? हर जगह पे कंफर्म है, किस जगह पे कंफर्म नहीं है? सही मुस्लिम में है, सही बुखारी में है, सीरत नबी इब्ने इसहाक के अंदर है, जगह जगह लिखा हुआ है। मोहम्मद कह रहा है कि मुझे आज भी जो मैंने जहर खैबर में खाया था उसका असर मुझे आज भी अपने हलक में फील हो रहा है जब वो अपनी बीमारी के अंदर था। एक जगह पे है, हजारों जगह पे। मेरी एक वीडियो उसका नाम है डेथ ऑफ मोहम्मद, जाके देख लें। डेथ ऑफ मोहम्मद, अच्छा, दी एगनी, एगनी, डेथ ऑफ मोहम्मद। आप जाके देखें, आपको पता लगेगा। एक जगह पे है, हजारों जगह पे है। अच्छा, ठीक है। अच्छा बिफोर यू कंटिन्यू द डिस्कशन एडम, कल की स्ट्रीम क्या है फटाफट लोगों को बता दो, अगर लिंक है तो भी शेयर कर दो क्योंकि यार 19,000 मैंने लिंक तो लोग अभी बनाया नहीं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा था यार मिरेकल्स ऑफ कुरान के ऊपर, कुरानिक लोगों के मिरेकल्स। कल मैं बात करूंगा, मैंने मिरेकल्स की अब एक पूरी वो करनी है, सीरीज करनी है। और कल मैं मिरेकल में बात करूंगा। आज मैं बात कर रहा था उधर एक चैनल के ऊपर, अंग्रेजी चैनल के ऊपर गया हुआ था, अपने नहीं किसी और के, उसामा डेकडॉक के चैनल पे गया था। वहां पे हातून ताश भी आई हुई थी और लिंसी एक और इंडोनेशियन एक्स मुस्लिमा हैं, वो भी आई हुई थी। और हम लोग डिस्कशन वहां पे कर रहे थे अबाउट हमने इस्लाम क्यों छोड़ा के ऊपर ना। शॉर्ट लाइव स्ट्रीम थी, 3 घंटे में 3 बंदों की टेस्टमनी भी है, सवालों के जवाब भी हैं और सारा कुछ है। लेकिन वो इंग्लिश चैनल है, ऑब्वियसली यू नीड टू कंसाइज एवरीथिंग वेरी स्मॉल। तो वहां पे बात हो गई सुलेमान की, हजरत सुलेमान की और उसके मिरेकल की। तो मैं सोच रहा हूँ कि हजरत सुलेमान और उसके, मैं एक मिरेकल इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर मल्टीपल प्रॉफिट्स के मिरेकल दिखाए गए हैं, मल्टीपल प्रॉफिट्स के। उसमें हजरत सुलेमान का भी एक मिरेकल है, फिर जोना का एक मिरेकल है, फिर मूसा के 2-3 मिरेकल हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर मल्टीपल मिरेकल्स जो कि मोहम्मद का तो एक भी मिरेकल नहीं लिखा हुआ है कुरान के अंदर जगह जगह। ओ मोहम्मद हमने तुम्हें कोई मिरेकल नहीं दिया, ओ मोहम्मद हमने तुम्हें कोई मिरेकल नहीं दिया, ओ मोहम्मद हमने तुम्हें कोई मिरेकल नहीं दिया। ठीक है। नहीं लेकिन सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप कह रहे हो कि कुरान कहता है कि मैं मोहम्मद साहब को कोई मिरेकल नहीं दी है, लेकिन कोई जब हम मिरेकल नहीं, सीरत पढ़े और उनकी जिंदगी का मुताला करें तो वहां पे हमको कुछ ऐसी बातें नजर आती है मिरेकल्स की जैसे भरमार, वो पत्थर, मिरेकल्स की हाँ भरमार। उंगलियों से पानी निकल रहा है, ये काम कर पत्थर रहे के हैं, बाद दरख्त सजदा कर रहे हैं, जो पत्थर नरम हो रहे हैं, पांव रख, ये दिस इज लाइक। साहिल साहब एक बात बताएं सिंपल सी, मुसलटे हमारे पास आके क्या बात बोलते हैं? अगर कोई हदीस हाँ कुरान कुरान के से ऑपोजिट टकराए। जाए तो उसको दफा कर दो।
उसको कूड़े में डाल दो। तो जब मोहम्मद के मिरेकल्स की बात आती है उसको दफा दूर क्यों नहीं करते? मैं करूंगा मिरेकल्स में, मोहम्मद के मिरेकल्स की स्ट्रीम सबसे एंड पे करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मेरा इसका जो पूरा स्ट्रीम ये एक सीजन चलाने लगा हूं मैं अब, ठीक है। जिस तरह आपको पता है मैं एक सीरीज चलाता हूं, उसी तरह मैं एक सीरीज चलाने लगा हूं, मिरेकल्स ऑफ द प्रॉफिट्स इन कुरान। पहला जो प्रॉफिट मैं पकड़ने लगा हूं वो सुलेमान पकड़ने लगा हूं, क्योंकि उस वाह पर भाई, बात उनके हुई तो तो एकदम मैं खतरनाक वाले मिरेकल्स है। एग्जैक्टली उसके एक नहीं है, दो नहीं है, कई मिरेकल है, राइट। सो हजरत सुलेमान के मिरेकल्स भी हम मल्टीपल करेंगे ऑब्वियसली, प्रोबेबली शायद मैं एक लाइव स्ट्रीम में उसे पूरा इनकैप्सुलेट ना कर सकूं, मुझे 2 या 3 लाइव स्ट्रीम बनानी पड़े सिर्फ सलमान के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा मिरेकल उसके ही दिखे हुए। तो सुलेमान के मिरेकल्स के ऊपर पहली लाइव स्ट्रीम, उसके बाद कुरान में 25 नबियों के नाम लिखे हुए हैं, 25 नबियों के नाम लिखे हुए हैं, हर नबी के मिरेकल्स के ऊपर स्ट्रीम बनेगी, और मैं हर नबी के मिरेकल्स दिखाऊंगा आपको कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना जबरदस्त बंदा था, कि उसने कितनी माशाल्लाह से अच्छी बातें की हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी बार माशाल्लाह कहोगे साहिल साहब, जन्नत में एक दरख्त लगेगा, और दरख्त इतना बड़ा होगा, जहां तक आपकी निगाह जाएगी उसका तना उतना ही चौड़ा होगा कि आपकी निगाह के हद्दे निगाह तक उसका तना ही नजर आएगा, इतना बड़ा दरख्त। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम हर मिरेकल को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो देखेंगे कि कितने आला मिरेकल हैं। तो मैं ये मिरेकल्स के ऊपर कल हम बात करेंगे सैटरडे को। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि जरूर जुड़े। हजरत सुलेमान जो कि डॉक्टर डू लिटल से भी ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि डॉक्टर डू लिटल सिर्फ और सिर्फ जानवरों से बात कर सकता था। डॉक्टर डू लिटल जो फिल्म बनी थी वो सिर्फ हजरत सुलेमान की कुरानी कहानी को देख के ही बनी थी। ये हाय जितने हाय भी हाय। क्वेश्चन हैं ये कुरान की बातें सुन के उसके ऊपर अमल करते हैं और साइंटिफिक वेरिटेशन करते हैं। तो डॉक्टर डू लिटल जो है ना साहिल साहब, इसी वजह से बनी थी। तो हम करेंगे हजरत सुलेमान की बातें, तो जरूर करेंगे। तो ऑल हैंड्स 20,000 लोग जो देख रहे हैं, कल आपने जरूर हाजिरी लगाना है। किसी ने अभी तक अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें, बैकअप चैनल दोनों को सब्सक्राइब करें, और एडम सीकर उर्दू चैनल का नाम है, अभी लिंक भी आपके साथ शेयर होगा। कल बड़ा इंटरेस्टिंग मिरेकल के ऊपर, मिरेकल पे कल हम स्ट्रीम करने वाले हैं सैटरडे को। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि एक बेहतरीन सा डिस्कशन कल भी आप देखने के लिए आपको मिले। कमिंग बैक, हमारे साथ 2 और मोमिन जुड़े हैं, देखते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई नॉलेजेबल मोमिन अगर इसमें से है तो उनसे बात हो जाए। मुजीब साहब। जी सर मोमिन है आप? जी, मोमिन हूँ मैं। मोमिन नहीं, मुसलमान हूँ। मोमिन और मुसलमान में थोड़ा सा फर्क है ना। अच्छा, इस्लाम की जानकारी कितनी है आपको? इस्लाम की जानकारी है, मतलब पूरी तरह से नहीं है, लेकिन है फिर भी। है फिर भी। किन किन जी जी, किताबों का मुताला किया अभी तक आपने? मुताला तो बहुत सारी किताबों का किया है। 2-3 नाम बता सकते हैं? एक सेकंड, अरे मुझे क्या नाम गूगल पे याद सर्च? नहीं है, लेकिन उसमें सारे नबियों के किस्से थे। हाँ, कससुल अंबिया। वाह अरे वाह कससुल अंबिया। वाह, इब्ने लो भाई कतीर का आदम, अब एक फॉलोअर आया तुम्हारे भाई, पास। इब्ने कतीर का फॉलोअर आया। अच्छा, एक बार अली अहमद साहब से भी कंफर्म कर लेते हैं, फिर आप इनसे बात करना। अली अहमद साहब। जी अहमद। जी हाँ अली अहमद साहब, यार। अहमद भाई आप रुक जाओ थोड़ा। अहमद साहब आप रुक जाओ। अच्छा, अली अहमद साहब, ओके मोमिन है आप? जी अच्छा, पक्के वाले हैं क्या कच्चे वाले हैं? मिक्स हाँ जी। मिक्स अच्छा, मिक्स है। कोई सूरह वगैरह सुना सकते हैं? चलो, अली अहमद भाग गया। मुजीब से डिस्कशन कससुल अंबिया पे अगर आप करना चाहते हैं एडम साहब, जी जी नहीं तो सर पहले साहब, आपने मुझे, सवाल क्या किया था? जिस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था इनको कससुल अंबिया इन्होंने पढ़ी है। मैंने पूछा था कि कौन कौन सी किताबों का मुताला किया आपने। वाह वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। सर कससुल अंबिया आपने पढ़ी है? सर मुझे जी बताएं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जी। कि मैं, जिसको अल्लाह मियां ने अपने आप, हाथों से बनाया। जी अच्छा जी, अच्छा, मेरा नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु माशाअल्लाह वस्सलाम। माशाअल्लाह। चलिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी, तो वो आप ही तो थे। सर, हाँ बिल्कुल, बेशक जी बेशक, मुझे अल्लाह जी मियां ने जी अपने जी। हाथों से बनाया, फिर तमाम फरिश्तों को कहा था कि मेरे आगे सजदा करो। और फरिश्तों को कहा था, लेकिन बाय द वे एक जिन ने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? अल्लाह मियां, अच्छा। जिन तो होगा ना, जिन ने कहा होगा भाई अल्लाह मियां तूने तो फरिश्तों को कहा था, मेरे को तो कहा ही नहीं। लेकिन एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ क्वेश्चन हाँ। ये है सर, जब आदम
अलैहि सलातो वस्सलाम जन्नत में जी डाले गए, जी ठीक है ना? तो जी मुझे ये बताइए कि जिन को सॉरी इबलीस को, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने उसका नाम भी दे दिया इबलीस, अब तू इबलीस हो गया, दफा हो जा यहाँ से, निकल जा, डिसेंड फ्रॉम हियर, गेट जी डाउन फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, अल्लाह ने उसे कह दिया था। तो मुझे जी बताइए कि आप ये बताइए कि किस तरीके से वो दोबारा जन्नत में दाखिल हो गया? वो दोबारा से, जी सर। अरे वो गया, मैं बता रहा हूँ ना, हम्म, वो जब गया ना वापिस, तो वो सांप को कुछ लालच दिया, जो जन्नत जन्नत में सांप भी थे ना। ओके सर, ये हेलो, मुझे दिखा दीजिए किस्सतुल अंबिया में कहाँ लिखा हुआ है सर? कससुल अंबिया में। जी जी, कि सांप को लालच दिया या व्हाटसएवर। आपके अल्लाह ने कहा कि डिसेंड फ्रॉम हियर, यहाँ से निकल जाओ, दफा दूर हो जाओ, कुत्ते हो तुम, बगैरत हो, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट डाउन फ्रॉम हाँ हियर, तुम्हारा जन्नत में कोई काम नहीं, तुम अब जन्नत में नहीं रह सकते, राइट? हाँ ओके। नाउ जब अल्लाह ने कह दिया, उसके बाद वो दोबारा जन्नत में दाखिल कैसे हो गया? जब अल्लाह ने किसी को जन्नत से निकाल दिया, अल्लाह ने खुद किसी को जन्नत से निकाल दिया, इसका मतलब मैं जन्नत में जाऊं तो जहन्नम से मैं भाग के जन्नत में दाखिल हो सकता हूँ? यानी कि जहन्नम जो है वो इंसानी जेल की तरह है कि मेरा दिल करे तो मैं भाग के जन्नत में दाखिल हो जाऊं? नहीं नहीं, जन्नत में थोड़ी। अरे तो भाई छल कपट से कैसे भी वो गया होगा उस टाइम पे, जो है कि कौन से छल कपट? छल कपट क्या? अल्लाह मियां से, अल्लाह मियां से ज्यादा बड़ा है शैतान? ये देखिए, मैं आपको कुरान की आयतें दिखाता हूँ, क़िस्सतुल अंबिया आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि क़िस्सतुल अंबिया में ये आयतें लिखी हैं, मैं आपको क़िस्सतुल अंबिया भी दिखा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू है मेरे लिए, मैं रोज पढ़ता हूँ ऐसी चीजें। ये कुरान में अल्लाह कहता है, चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 11 से लेकर 28 तक है, कहते हैं हमने तुम्हें तख्लीक किया, फिर तुम्हारी तस्वीर कशी की, फिर हमने फरिश्तों से कहा झुक जाओ, आदम के सामने सजदा किया, सिवाय इब्लीस ने। इब्लीस सजदा करने वाला नहीं हुआ। इब्लीस तो वैसे ही फरिश्ता नहीं था, उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह तूने तो मुझे कहा ही नहीं था। अब मेरी क्लास में 99 लड़कियां हैं और एक लड़का है, और मैं कहूँ तमाम लड़कियां खड़ी हो जाएं, सब लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। वो जो लड़का एक है वो खड़ा नहीं हुआ, तो मैं उसको सजा कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो कहा ही नहीं कि लड़के खड़े हो, मैंने तो कहा लड़कियां खड़ी हो, तो कसूर मेरा है। लेकिन नहीं हो, इसके ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा आपके साथ, कोई बहस नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया किस चीज ने तुम्हें रोका सजदा करने से? मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। तो उसने कहा कि भाई तूने तो मुझे आग से बनाया है और इसको मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया, मुझे तो कह रहे थे सजदा कर। अल्लाह ने कहा प्लस उतर जाओ, डिसेंड फ्रॉम इट, डिसेंड फ्रॉम इट। जो जन्नत थी जहां पे आदम को बना के रखा हुआ था अल्लाह ने कहा डिसेंड फ्रॉम इट, निकल जा, इससे नीचे गिर जा, पानी यानी कि जहन्नम में चला जा या दुनिया में आ जा, डजंट मैटर, जन्नत में नहीं रह सकता। क्यों? उसने कहा जो तकब्बुर करने वाले जन्नत में नहीं हो सकते, तकब्बुर करने वाले जन्नत में नहीं हो सकते। इसने कहा मुझे मोहलत दे दे दुनिया में, इस दिन तक जिस दिन तक इन्हें जिंदा करके उठाया नहीं जाएगा। अल्लाह ने कहा ठीक है, मोहलत दी, तुझे मोहलत दी, जा मेरे लोगों को बहका के दिखा। इसने कहा परवरदिगार तूने जो मुझे गुमराह किया है, अब मैं लाजमन इनके लिए घाट में बैठूंगा तेरी राह में, मैं बैठा रहूंगा, जब भी कोई बुरा काम करेगा मैं उसे बुराई की तरफ लेके जाऊंगा, फिर मैं इन पे हमला करूंगा, इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से, और इनकी अक्सरियत को शुक्र करने वाला नहीं रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा पैराडाइज से, दफा हो जा साले, तेरा जन्नत में कोई काम नहीं है, मरदूद है तू, मरदूद है, दफा हो जा, जो भी तेरी पैरवी करेगा तुम सबको जहन्नम में डालूंगा। अल्लाह कह रहा है यहाँ पे, अल्लाह कह रहा है। फिर आदम ने कहा ए आदम रहो जन्नत में। अब जन्नत से शैतान निकाल दिया, शैतान निकाल दिया, जन्नत को ताला लगा दिया है। आदम को और उसकी बीवी को कहा है, हवा का नाम कुरान में नहीं है, ठीक है, आदम को और उसकी बीवी को कहा है जन्नत में रहो, याशी करो, चिल करो, खाओ पियो, जो करना करो, एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब जन्नत से निकाल दिया है इस इबलीस कमीने को, तो ये इबलीस कमीना, क्योंकि अल्लाह कुरान में उसे कमीना कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है भाई अल्लाह के ऊपर ब्लेम करो। अल्लाह ने तो उसे और भी मरदूद कहा है, मरदूद मींस यू नो मजीद गंदी वाली चीज, जो कि मैं कहना नहीं चाह रहा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो साहिल भाई ये मरदूद की हिंदी ट्रांसलेशन क्या की है इन्होंने यार? मुझे हिंदी वर्ड भी चाहिए इसका। ये मरदूद की हिंदी ट्रांसलेशन क्या है यार? हिंदी पढ़िएगा साहिल भाई या कोई भी? मैं पढ़ रहा हूँ, दिखाई तो सही। जी जी पढ़े। क्या है? धिक्कारा। अल्लाह ने कहा धिक्कारा अपमानित धिक्कारा हुआ।
धिक्कारा और हम्म। इंग्लिश में रिजेक्टेड वर्ड यूज करते हैं थू ना। थू 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 वाला, थू थू वाला, थू थू वाला, ठीक है, थू थू वाला, थुतकारा बाद थू धिक्कारा ही थू, तू हुआ। थू थू, ठीक है। हम्म, अब मुझे बताएं कि ये जब जन्नत हम्म, जन्नत में है ही नहीं, ये आदम और उसकी बीवी को इसने कैसे बहका लिया? हम्म। किस रसूल अंबिया आपने पढ़ा हुआ? देखिए भाई, मुझे नहीं पता वो कैसे बहका लिया। अब इतना लंबी देर से बोल रहा हूँ यार, मैं तो शुरू में ही, मुझे नहीं पता वो कैसे बहका दिया उसको। देखिए मुझे सर इतना बंदा पता है गया, सर इसने कि किस वो रसूल कोई अंबिया भी नहीं गया, गया साहिल साहब गया, गया खत्म हो गया, पहले ही सवाल पे खत्म हो गया।